Hello everyone. Good afternoon to all. Hope I'm audible. Okay. I started the presentation. Is it visible to you guys? Okay. So today we are going to cover something called email sending through your Python. Okay. By using Python, if you wanted to send email, how you access it, how you perform it, what are the different modules we have to use. So we are going to see that all. Okay. And before that, we'll see something called your environment variables. Okay. So, okay. So we'll continue. Prachi, you have to contact to the head office, okay, of on office number, and they will can do something in that case. It's not in my hand, okay. So you have to talk with the office, okay. So we have something called send email sending. तो हमारे पास कुछ है that is called the email sending. And before working with the email sending, we wanted to see how to access your environment variables into your how to access environment variables into your what we are saying Python code. Okay, so see how to access the environment variable into the Python code. Now, why we required environment variable? So, see, if we use some conscious data or some important data like जो कि user को दिखाई नहीं देना चाहिए, if I wanted to use that kind of information which should not be exposed to the user, okay, तो यूजर को एक्सपोज नहीं होना चाहिए, यूजर को वो दिखाई नहीं देना चाहिए. इफ दैट इज द केस, that if we wanted to use such a kind of information, if I directly access it into or put it into the my code, user can see it, okay, user can access it. So if I don't want to show that directly, then I will store that data into the something called environment variable, and then I can use it. मीन्स आपका पासवर्ड है या आपका डेटाबेस का नेम है दैट यू वांट डजंट वांटेड टू शो टू दी योर एंड यूजर, आपको एंड यूजर को दिखाना नहीं है, ओके. तो हम लोग उसे एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, सपोज आई वांटेड टू सेंड अ मेल, तो सेंडर का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मुझे प्रोग्राम में हार्ड कोडेड नहीं रखना है. आई वांटेड टू रीड इट फ्रॉम माय एनवायरमेंट वेरिएबल. So how to get the data from the environment variable? If we have such a data which you don't want to expose to the user, if we have such a data which you which you does doesn't want to expose to user, doesn't want to expose to the user, okay, if we have such a data which you don't want to expose to the user, then we can get it from environment variable. We can get it from the environment variable, okay. So how to access the environment variable into the Python, this is the stuff, okay. तो यहाँ पे देखो आपका क्या है,
So if we have such a data which you doesn't want to show or expose to the user, then you can get it, actually store it into the environment variable and then get the data through the environment variable in a Python. Okay, so how to do it? First of all, we'll see how to store the data into the environment variable. बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि environment variable क्या है. So you have to go on a control panel. तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना है. ओके, so just I'm opening my control panel. Is it visible to all? See, I'm just searching for a control panel. This is my control panel. So you have to go into the controller panel. Sorry. So this is my control panel. Then after that, you have to go into the system and security. So after the control panel, you have to go to the system and the security. Okay. Then later you have to go into the settings. Hello, chalte? तो देखो, I'm just going into the control panel, systems and security. Later you have something called system. Sorry, not a setting. Huh? You have to go into the something called system. Okay, you have to go into the system. So let's go into the system. Once it get open, you have see advanced system settings. So what you have after that? Advanced system settings. So you have to go over there. Okay, and after going there, आपको ले जाना कहाँ पे देखो. So I'm just going into the advanced system settings, and after going into that, you will see environment variables button. ये button है, क्या लिखा है आपका? Environment variables. So after that, you have to go into the environment variables. तो देखो, हम लोग कहाँ कहाँ गए? कंट्रोल पैनल, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम्स. ये आपका माय कंप्यूटर में बता रही हूँ. Then advanced system settings, environment variables and user variables. दो sections होंगे आपके. देखो, आपको दिखाती हूँ. Once you go into your advanced system settings, you will see the environment variable tab. Once you click it, you will see the two sections. One is user variables and another is system variables. So we'll work with the user variables. So I'm just creating here one variable called, suppose my DB name. This is the variable. Okay, DB name. And value for it is something like profound. हमने यही बनाया था, profound Python. So this is the name of my database. So I'm creating one variable and I'm storing my database name into it. Save it. So database, see, one variable get created and that is holding my database name. I'm just creating plus. Then I'm saying one more DB password. Okay, database password, and I'm just saying Sonali. Sonali is my database password. Say okay. Okay, so see, you can see my database name is there, my database password is there. Okay, so these are the two variables in my user variables info. Okay, user variables for user. System variables are also there and that will hold your paths. Okay, यहाँ पे paths होते हैं and ये user defined variables है. आप यहाँ पे आपका खुद का variable बना सकते हैं and you can specify your value. Now it is in a system.
Now you wanted to access it into the Python. तो आपको इसे किस में एक्सेस करना है? पाइथन में. So I'm just saying here close all. Okay. So now I wanted to access it into the Python. So I'm going into the file, or I'm just right clicking on a project. Right click, new. I'm saying directory. हम अलग से directory बना रहे हैं, और directory की जगह पे हम लोग package बनाते हैं. Right click, new, Python a package, email and environment variables. ओके, तो ये हमारा पैकेज बना. इसमें हम लोग कर रहे हैं राइट क्लिक, न्यू. आई एम सेइंग पाइथन फाइल. फाइल का नेम दे रहे हैं यहाँ पे. सी द नेम ऑफ द फाइल. एनवायरमेंट वेरिएबल डॉट पीवा. तो ये मेरी फाइल है. ओके. So whatever the variables I have declared into my system as an environment variable, I wanted to get it here. So for that purpose, you have to import something called OS model. We have one model called OS. Now, DB name, ये मेरा variable है. Okay, database का name store करने के लिए E is equal to. Now, OS dot environment. Environ. Okay, dot get a method is there, and here you have to pass the name of your environment variable which you have created over there. So मैंने क्या दिया? db underscore name. This is my environment variable. So it will read a data from your system environment variable and it will give it to you. You will store it into this one. Okay. Now password psw is equal to os dot environment. So okay, dot get, and then double quotes, and you have to pass the db underscore. We'll check कि नाम क्या दिया हमने? Password. So db underscore password is there. Same होना चाहिए. Okay, done. So you will get the data. Now you, if you want, you can see कि सच में आया या नहीं. Print करके देखो. So I'm just saying print. First of all, I'm printing the db name, and then plus double quotes backslash n. New line पे हम लोग print कर रहे हैं. Plus नहीं है यहाँ पे. Comma PSW. तो हम लोग दोनों को प्रिंट करके देख रहे हैं. So we are just checking कि is we are getting the data or not. So just run it. Okay. So it is returning you the null value. Okay. So आपने add किया, close कर दो. Okay. Close it. Close it. Now run it. It is giving a null only. Just a minute. I will recheck it. Advanced systems and settings. Environment variable, db name and database password. नेम तो सेम दिया हमने, राइट?
It will work. No, it is not able to get the data. Mm, we are just going again and we'll check is the data is exist or not. So I have data there. Okay. Name doesn't matter, but I'm just editing and trying to check, nothing else. Database and password. Okay. So here we have something called database, and here we have something called password. Okay. Save it. Run again. No, it is giving a null values. लिखा तो हमने राइट है. Let's see. Again going into the control panel, I will just declare few more. Okay. तो हम ईमेल के बारे में ही डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स को. सिक्योरिटी, सिस्टम, advanced system settings, environment variable, new one, email address, and then email password. Email address is suppose my email id sonali.mindhe@gmail.com, something like this. Okay, तो ये आ गया न्यू email underscore password, and something is there like Sonali BM, ऐसे कुछ दे दिया हमने. So these are two. We'll try to get the data of both of them. Okay. तो यहाँ पे आता है email underscore address and email underscore password.
Suppose this is my sender, so I'm just storing it into the sender email, and this is my password. So password. Okay, so we will just print it. I'm saying password, and here I'm saying sender. So sender email, and here we are saying password. Let's try. So it is working. See, तो हमने email address and आपका password डाला and it is working. See, okay. So you can get the data like this. तो आप आपका data ऐसे ले सकते हो. You can get the data like above. Okay. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो वी आर जस्ट स्टोरिंग अवर यूनिक इंफॉर्मेशन. अभी आपको सिर्फ पता चल रहा है कि यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट वेरिएबल्स. सो यूजर कैन सी ओनली कोड, राइट? तो यूजर को समझ में नहीं आएगा कि ईमेल में क्या है, सेंडर ईमेल में कहाँ से डेटा आ रहा है एंड पासवर्ड में कहाँ आ रहा है. दैट इज हिडन फ्रॉम द यूजर इफ यू पुट इट इनटू द कमेंट. ओके, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं इसलिए दिखाई दे रहा है, बट राइट नाउ इट इज इन अ कमेंट and now you are getting your email id and password from your environment variable. This is very important when you guys put your code on a github or something like that. अगर आपने गिटहब या किसी और वेबसाइट पे आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया तो वहां पे आपको एनवायरमेंट वारी, यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया तो दैट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? गिटहब का कोड तो कोई भी देख सकता है. So it is visible to everyone. We don't want that. So for a security purpose, we'll write like this so that no one can see my email ID and password. It is referring to my system environment variable. ठीक है यहाँ तक? तो OS के अंदर एक वेरिएबल है env and within that, see, within OS we have env and within that we have a get. So it will hold your all the environment variables and you can simply say get and pass the name and it will return you that value. ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोजेक्ट में आगे ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके, नाउ वी हैव ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. हमारे पास दोनों भी है. ये सेंडर का ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है. अभी हमें क्या करना है? आई वांटेड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. Okay, sorry, not a database. I wanted to connect to my mail server. Okay, Gmail से हम लोग mail send करेंगे. So Gmail is my mail server, gmail.com. So I wanted to connect to my mail server and I wanted to send some mail to the user. Okay, तो देखो mail sending के लिए सबसे पहले हमें लगेगा you have to say import. तो हम लोग ये तो environment variable का कोड है, so I'm not missing it. ये ऐसे ही रहने देते, दो अलग अलग कोड्स लिखेंगे हम लोग. Okay, so I will just create a new file. Right click, new. I'm saying Python file. Name दे रहे फाइल को, देखो email example. Okay, email example. So this is my file name. email.py ऐसे करके फाइल मत दो, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट मे लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको ये नहीं करना है. ओके, सो जस्ट से email example. Now the most important, you have to import some package and that is import OS. OS तो लगेगा because we'll take a email ID of the sender and the password of the sender from the environment variable. So you require OS. Then you have to import SMTP LEAP, Simple Mail Transport Protocol. ओके, SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, उसकी लाइब्रेरी फाइल को आपको इंपोर्ट करना होगा, SMTP lib. Now see, the most important, you have to connect to your mail server and to connect to the mail server, आपके मेल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको देखो, सॉरी, फर्स्ट क्या है आपका? कनेक्ट टू मेल server. And how to connect it? So within a SMTP,
dot sorry smtp leap. We have one smtp class and that takes two arguments. तो देखो क्या है ये क्या है आपका this is the models, ये दोनों मॉडल्स है. So see, I'm using with. आपको पता है कि with का यूज क्या है. आपको कनेक्शन को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इफ यू आर यूजिंग विथ. सो आई एम जस्ट राइटिंग अ विथ स्टेटमेंट विथ smtp leaf dot smtp class and that takes two arguments. First is your mail server, तो smtp dot gmail dot com. हम जीमेल यूज करने वाले, so smtp.gmail.com. And then as you are using simple smtp, so you have to specify your port number and 587. This is my port number. Open as, and you can give any name like I am saying s server है, server भी बोल सकते हो आप. Open as a server. Okay. So this will connect to your server and this is the reference of it. This is the object of it, reference of it. So smtp leap, ये लाइब्रेरी है एंड विद इन दैट दिस इज द मॉडल. ये मॉडल है, उसके अंदर क्या है smtp क्लास है दैट टेक्स two argument. One is your mail server and then if you are using a plain mail server then your default port number is 587. So you have to, मुरारी पोर्ट नंबर नहीं पता आपको, यू डोंट नो पोर्ट नंबर्स. अभी आप कोई अभी आपने MySQL इंस्टॉल किया कल, राइट मुरारी? तो आपका MySQL गेट इंस्टॉल ऑन सम पर्टिकुलर पोर्ट नंबर दैट इज योर 3306. ओके. तो आपने जो कल आपका टॉम आप लिखते हो ना लोकल होस्ट 8080, ऐसा भी लिखते हो आप लोग? बहुत बार देखते हो कि लोकल होस्ट 8080. सो वन पोर्ट इज गेट असाइन फ्रॉम योर सिस्टम. आपके सिस्टम से एक पोर्ट असाइन होता है एंड ऑन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन गेट एग्जीक्यूटेड. तो ये जो एसएमटीपी सर्वर है उसके लिए ये पोर्ट नंबर रिजर्व है. जैसे माइस्क्वेल का पोर्ट नंबर है आपका 3306, देन आपने अगर टॉमकैट यूज किया, टॉमकैट का पोर्ट नंबर है 8080. Okay, so every application running on your system requires some memory and requires some port to access your system environments. Okay, तो वो पोर्ट नंबर होता है. Okay, तो वही है, nothing else. So this is your port. So you are saying that I wanted to work with a Gmail server and this is the port number for SMTP plain a Gmail server. Now you got the object. Now most important thing here is you have to identify ourselves with your mail server we are using. तो आपको मेल सर्वर के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड इसी के लिए देखो क्या है हमारे पास सर्वर जो हमने रेफरेंस बनाया. ओके, डॉट EHLO, दिस इज द मेथड. ये बाय डिफॉल्ट भी इंटरनली कॉल होती है, आपको कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट कॉलिंग इट एक्सप्लिसिटली एंड इट विल जस्ट वेरीफाई और यू कैन से आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद योर मेल सर्वर. ओके, now after that we are just following the encryption as well. So we are saying ये जो ट्रैफिक है, जो ये सेंडिंग का काम है, सेंडिंग एंड रिसीविंग का जो task है, that must get in an encrypted format so that we can get the security. And this why server dot s start els. This will just for, देखो ये क्या है, ये किसके लिए, ये बाद में निकल. सी दिस आर द कंसेप्ट्स फॉर अ बेसिक सेंडिंग. ओके, फर्स्ट हम लोग बेसिक टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, इसके लिए. सो EHLO, दिस इज द फंक्शन एंड ये फंक्शन किसके लिए, टू आइडेंटिफाई ourselves with a mail server we are using, जो हम लोग यूज कर. ओके, ना ये किसके लिए, encrypt, it encrypt your traffic.
ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करने के लिए ये है। ओके, सो दिस आर देयर, सॉरी, okay, and after encryption you have to re-identify yourself with a mail server कि okay these are the encryption algorithms and all that, so again EHLO, तो ये है। ओके, ये बेसिक है, ये इंटरनली भी कॉल होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट स्टार्ट TLS, दिस इज फॉर अ एनक्रिप्ट ट्रैफिक। जो भी आपका अल्गोरिदम्स यूज करके आपका जो भी डेटा सेंड हो रहा है, अप्लाई द एनक्रिप्शन सो दैट इट विल गेट resend and received with some security measures, okay, and this is for identifying ourselves with a mail server। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लॉग इन करना है विद इन अ सेंडर अकाउंट। ओके, तो सेंडर के अकाउंट में आपको लॉग इन करना है सो दैट यू कैन सेंड द डेटा। So you require email ID and password to log in into the sender account. So here I am saying email, sender email। and आपको पता है कि हमने email ID and password जो है, ये दोनों चीजें आपकी एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर किए हैं। तो os डॉट, ओके, os डॉट एनविरॉन डॉट गेट, एंड आपके वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नेम आएगा एंड दैट इज email underscore password, email underscore password, then os dot environ dot get, एंड डबल कोट्स में हम लोग लिख रहे हैं email underscore एड्रेस। तो ये ईमेल का क्या है आपका एड्रेस। ओके, सो सेंडर एंड योर ईमेल का सेंडर का एड्रेस आएगा आपका, एंड ये आपका पासवर्ड आएगा। सो बाय यूजिंग दिस ईमेल सेंडर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये आपका ईमेल आईडी रहेगा, ये पासवर्ड रहेगा, वी हैव टू लॉग इन। तो सर्वर के अंदर, सर्वर मीन्स योर, ये जो आपने रेफरेंस बनाया दैट इज सर्वर। आप एस भी यूज कर सकते हो, अगर सर्वर कंफ्यूज कर रहा है बार बार तो एस यूज करो, दैट विल बी ओके। ओके, एंड यहाँ पे भी एस, एनीथिंग, सर्वर सर्वर बोल रहे हैं आपको कुछ लगेगा बिल्ट इन है, नहीं, वहां से हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो। सो एस डॉट लॉग इन, what we have login, you have to specify the user and password, so email id and password, so I'm just specifying the email id, email id is stored in a sender email and password is in a password, that's it. So with the help of this credentials, with the help of this email id and password, it will get login into your email id sender email account। okay, तो आपके sender के email account में ये क्या होगा, login होगा। now see, सब्जेक्ट करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, okay, subject is equal to, in a double quote you can say any subject, like let's have dinner or let's have party this weekend, लेट्स हैव पार्टी दिस वीकेंड, तो ये सब्जेक्ट है। ओके, भी आपको बॉडी पार्ट भी लिखाना है, बॉडी टेक्स्ट मैसेज है, ज्यादा कुछ नहीं, हम धीरे धीरे ऐड करेंगे आपका, हाउ टू ऐड द अटैचमेंट्स, ओके, हाउ टू सेंड इमेज, हाउ टू सेंड द पीडीएफ, ये सारा देखना है आज हमें। सो राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट सब्जेक्ट एंड बॉडी इज इक्वल टू, एंड बॉडी में क्या कर रहे हैं, देखो बॉडी में लिख रहे व्हाट अबाउट dinner at 6 p.m. this Saturday at my place। ओके, तो ये ऐसे हमारे ये दो डिफरेंट मैसेजेस है, वी हैव दिस टू मैसेजेस, one is in a subject and another is in a body।
भी इनके थ्रू हमें मैसेज बनाना है, वी वांटेड टू क्रिएट अ मैसेज। सो व्हाट आई एम सेइंग, सी मैसेज इज इक्वल टू, अभी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट दिखना चाहिए, फिर कुछ लाइन का गैप होना चाहिए लाइंस का, एंड देन आई वांटेड टू शो द बॉडी। सो फॉर दैट वी क्रिएट एफ मैसेज। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, आपका एफ मैसेज बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं सब्जेक्ट कोलन, एंड देन करली पैरेंथेसिस में हम लोग हमारा नाम बताएंगे जिस वेरिएबल में हमने सब्जेक्ट स्टोर किया। सो सब्जेक्ट इज अ वेरिएबल। Then here I want the two line of space, so backslash n backslash n। अगर लाइन का स्पेस चाहिए तो हम f सब्जेक्ट f मैसेज बनाते हैं, f एंड देन डबल कोट्स में आपका मैसेज, नथिंग एल्स। तो बीच में बैकस्लैश n टू गेट दी टू लाइन ऑफ गैप, एंड देन आई एम सेइंग बॉडी। बट बॉडी कैसे लिखेंगे हम लोग, करली पैरेंथेसिस में लिखेंगे आपका बॉडी, दैट्स इट। सो ये बन गया हमारा मैसेज। अभी हमें सेंड करना, एंड फॉर सेंडिंग एस डॉट, देखो क्या कर रहे हैं, सेंड मेल। ओके, एस डॉट सेंड मेल। तो आपका सेंडर का ईमेल एड्रेस, सो सेंडर ईमेल, देन आपका रिसीवर का ईमेल एड्रेस, सो मैं मुझे ही सेंड कर रही हूँ, मैं आई एम सेंडिंग टू माई सेल्फ ओनली। सो सोनाली डॉट मिंढे @gmail.com। ओके, एंड देन आपका मैसेज, सो यू हैव टू सेंड दी मैसेज। देखो सेंडर ईमेल आईडी, रिसीवर ईमेल आईडी, सेंडर एंड रिसीवर सेम ही है मेरे केस में, एंड योर मैसेज। ओके, तो ये हो गया कोड। बट दिस कोड इज रेडी नाउ। आप देखो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट लेट मी नो। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, एनीवन वांटेड टू आस्क एनीथिंग? देखो ये एफ मैसेज है, जस्ट इफ यू वांटेड टू गेट फ्यू लाइन ऑफ गैप इन दी टू लाइंस, देन वी कैन गो विद एफ मैसेज। तो सिर्फ एफ लिखते हैं आगे, एंड डबल कोट्स में आपका मैसेज आएगा। जो भी आपको वेरिएबल्स के डेटा स्ट्रेस पास करना, तो यहाँ पे करली पैरेंथेसिस में वो आ जाएगा, so that it will print the value hold by this variables, even in a curly parenthesis it will print value hold by this variable। ओके ठीक है, कैन वी रन? बट रन करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है आपके अकाउंट के लिए। सो दिस इज माई sonali.minde@gmail.com, ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। एंड उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, देखो यू हैव टू गो इन टू दी माई अकाउंट डॉट gmail@google.com। यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना आपको, you have to go into the security, and then here you have one option can least secured application access। तो आपके जीमेल के लिए आपको इसे ट्रू बनाना है, ये ऑफ होता है, एंड यू हैव टू सेट इट टू ट्रू। आपको इसे ट्रू बनाना है। ओके, तो ये पार्ट मैं आपको मेल कर रही हूँ, यू हैव टू गो ऑन दिस एंड यू हैव टू टर्न इट ऑन। यहाँ पे आपको सेंड कर रही हूँ, देखो लिंक में, keep that to you। Okay, you have to set it to on। Now it is on। Now I get one message from them, see, देखो गूगल से मैसेज आ गया कि आपका लिंक ले सिक्योरिटी आपके लिए एक्सेस होने के लिए तैयार है अभी। नाउ यू कैन रन योर प्रोग्राम एंड यू कैन गेट योर मैसेज इन ईमेल टू योर अकाउंट। सो सेंड। Now it will not show anything here because I'm not printing any message। Okay, it is having some error। Okay, login। ठीक है, हम लोग पहले ये दो वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं कि इज वी आर गेटिंग इट और नॉट। सो सेंडर ईमेल कॉमा डबल कोट्स बैकस्लैश n, then comma, and then your password। We are just printing it।
See, that is Prachi. The SMTP lib is a model. ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होता है. ओके, SMTP lib ये एक मॉडल है. इट इज लाइक अ फोल्डर विच इज होल्डिंग दिस SMTP क्लास विच हेल्प यू टू कनेक्ट टू योर मेल सर्वर. तो आपको ये SMTP क्लास चाहिए. वो किस में है? SMTP lib में है. SMTP क्लास क्यों चाहिए? क्योंकि आपको आपके Gmail सर्वर के साथ कनेक्ट होना है. ओके, एंड टू गेट दिस SMTP class so that you can connect to your Gmail server, you have to import SMTP lib. ठीक है. Okay, now I will run it again. So it is generating few error on a login. Username and password not accepted. Okay, Sonali.Minde mandhe@gmail.com. Okay, so we are getting कि वो email ID and password accept नहीं हो रहा. It is saying that sender email is equal to os dot. Data तो right आ रहा है, but why it is not accepting? We'll check. Authentication error, username and password not accepted. Learn more at this. ठीक है, हम लोग अदर वे से ट्राई करके देखते हैं. ओके, तो ये तो प्लेन मैसेज के लिए यूज होता है SMTP. एंड देन अनदर इज SMTP, अनदर क्लास इज देयर SSL. ये भी क्लास है. सिर्फ इसके केस में अगर आप SSL यूज करते हो तो आपका पोर्ट नंबर चेंज होता है, एंड दैट पोर्ट नंबर इज योर 465. Okay, this will be your port number, and if you are using that, no need of having all this stuff, you can comment it. Okay, you just have to say s dot login, and you have to pass the sender email ID and password. We'll check that SSL is allowed it us to log in or not. ये दो अलग अलग क्लासेस है. हाँ, ये क्लासेस है. SMTP एक क्लास था एंड SSL एक क्लास है. दोनों भी ईमेल सेंडिंग के लिए यूज होते हैं. Where is our meeting? Okay, it is again saying username and password are not accepted.
ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालती हूँ, देखते क्या होता है। ओह शिट! मेरे मल्टीपल लॉगिन्स है। ओके, सो आई हैव टू सेट टू दैट अकाउंट जिससे हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा पहले वाला मैंने गलत सेट किया था, देखो दिस इज माय न्यू वन। ओके, जिससे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं जिसके साथ। तो मेरे मल्टीपल लॉगिन्स है मेरे सिस्टम में। सो दिस इज वन विथ विच वी आर वर्किंग, सोनाली डॉट मिंडे। तो यहाँ पे आपको इसे ऑन सेट करना है, यू हैव टू सेट इट टू ऑन। अगर आपके पास भी अगर मल्टीपल लॉगिन्स है तो आप बी केयरफुल, यहाँ पे देखना है कि आपने कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हो, किसका ऑन कर रहे हो। मैंने दूसरे ही अकाउंट का ऑन कर दिया था, लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एरर। तो लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। See, I'm just uncommenting and we are just continuing with our previous example, same example. Okay. SMTP के साथ ही वर्क कर रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर एज इट इज। प्रॉब्लम ये था कि मैंने जो लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन एक्सेस आपको ऑन करने के लिए बोला था, देखो नाउ इट इज नॉट गिविंग एनी एरर। फिनिश विद द स्टेटस कोड 0 मीन्स प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। यू हैव टू गो इनटू योर जीमेल। यू कैन से आई एम गेटिंग अ मेल फ्रॉम माई साइड। देखो यहाँ पे ऊपर मेल आ गया, इफ यू ओपन इट, सी फ्रॉम sonali.minde@gmail.com। ओके, एंड खुद को ही है, लेट्स हैव अ पार्टी दिस वीकेंड, एंड इन द मैसेज व्हाट अबाउट द डिनर एट 6 p.m. दिस सैटरडे एट माई प्लेस। ओके, तो ये मैसेज आपको डिलीवर्ड हो गया। तो ये ध्यान में रखो, आपको लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ऑन करना है। अगर आपके सिस्टम पे, यू कैन सी ऑन माय सिस्टम मल्टीपल अकाउंट्स आर लॉग इन, तो उसी के लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो आप जिस अकाउंट के साथ वर्क कर रहे हो उसी को सिलेक्ट करो एंड देन ऑन द लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन एक्सेस। ओके, ठीक है। तो ये करने के बाद ही आपका मेल सेंड होगा, अदरवाइज नॉट, इट विल गिव अ एरर। यहाँ पे, हाँ अभी हम लोग यहाँ पे है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। इफ एनीवन वांटेड टू आस्क एनीथिंग लेट मी नो। एसएमटीपी लिप, ये एक मॉडल है that will hold the class called SMTP, and you can say the classes regarding your ऑल दी मेल सेंडिंग एप्लीकेशंस। तो मेल के रिगार्डिंग जितने भी क्लासेस है वो इसी में है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं दैट इज एसएमटीपी। दिस क्लास विल टेक टू थिंग्स, वन इज योर मेल सर्वर, तो हम लोग जीमेल यूज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई smtp.gmail.com। smtp क्या है आपको पता होना चाहिए, इट इज वन ऑफ दी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जिनको ओएस हो चुका है उनको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, यूडीपी, टीसीपी, आईएमवीपी हो, वीपी 4, तो ऐसे बहुत सारे हैं, पॉप 3 है। तो दिस इज रिगार्डिंग योर जीमेल। ओके, नॉट जीमेल, इट इज रिगार्डिंग योर मेल सेंडिंग के लिए सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एंड उसके अंदर हम लोग सर्वर यूज करें जीमेल सर्वर। दिस इज द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर एसएमटीपी, सो आई एम जस्ट पासिंग दैट। ओके, दे EHLO, this is the function to identify ourselves with a Gmail server we are using, जो भी है। Then start TLS, it is for encryption, encrypting the traffic so that secure with the security. Then again after sending the security, after assigning the security, you are again identifying yourself and modifying that we have applied the security now. Then you are just logging into the sender account by using sender email ID and password. Then you have something called subject and body part. तो हमारे पास subject है and body part है। So हमारा कोई data है,
हमें बीच में 2 लाइन्स का स्पेस चाहिए, इसलिए हमने एफ मैसेज बनाया, बट दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ क्रिएटिंग इट, तो हम लोग इसे चेंज करेंगे, डोंट वरी. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड s.sendmail.com, sorry, send s.sendmail. this is the class, this is the method actually, ये function है coming from your class called smtp. तो smtp से आ रहा है ये, it is coming from your class called smtp. and smtp का देखो यहाँ पे लिखा है, देखो smtp lib में smtp क्लास है, उसके अंदर ये def फंक्शन है, सेंड मेल, इट इज एक्सेप्टिंग लॉट्स ऑफ स्टफ. ठीक है, तो ये smtp का क्या है, मेथड है. द smtp इज अ क्लास एंड इट इज अ मेथड. तो smtp का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, s इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ smtp एज s. तो s डॉट सेंड ईमेल, सेंडर नेम मीन सेंडर का ईमेल आईडी, रिसीवर का ईमेल आईडी, जैसे मैंने मेरा ही डाला है यहाँ पे, एंड योर मैसेज. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, इज इट क्लियर? एनीवन वांटेड टू आस्क एनीथिंग? Murari is saying clear. What about the others? Chinmay, Dhanashri. Okay, okay, fine. तो हम लोग अभी नेक्स्ट वे देखेंगे जिसमें हमें इमेज सेंड करनी है. ओके, सो राइट क्लिक, न्यू, आई एम सेइंग पाइथन फाइल. तो पाइथन फाइल में देखो ये रिपीट होगा, डोंट वरी. इमेज मेल सेंड, सेंड इमेज टू मेल. ओके, तो ये हमारी फाइल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ पैकेजेस लगेंगे इंपोर्ट. ओके, फर्स्ट पैकेज लगेगा आपका ओएस. देन ओएस के बाद आपको इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट, एंड इंपोर्ट क्या करना होगा आपको, smtp lib. ओके, भी देखो, देन यू हैव टू से इंपोर्ट and you have to say, or actually you have to say from mail from email dot message, import email message. So email dot message ये पैकेज है, और यू कैन से इट इज अ मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर हमारे पास क्लास है. विद इन दिस मॉडल वी हैव अ क्लास कॉल्ड ईमेल मैसेज. ओके, तो ये ईमेल मैसेज क्लास है. अभी देखो थोड़ा अलग कर रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इसे. ओके, तो कैसे करेंगे देखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विथ, ओके, विथ देखो क्या यूज कर रहे हैं, smtp lib. ये आपका क्या है, मॉडल है. इट इज होल्डिंग डिफरेंट क्लासेस डॉट smtp ssl. अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं, smtp से थोड़ा एडवांस लेवल का सिक्योर्ड एंड बेटर जीमेल फॉर्म कर रहे हैं. तो smtp ssl ये दो चीजें लेगा. एक तो लेगा आपका सर्वर, तो हमारा है smtp डॉट जीमेल सर्वर डॉट, आपका क्या आएगा, जीमेल के बाद क्या आता है आपका, कॉम, smtp डॉट जीमेल सर्वर डॉट कॉम. so it will hold your com, then comma, here you have to specify the port number 465. so this is the port number. ये जो क्लास है, दिस इज द क्लास विच एक्सेप्ट, इसका कंस्ट्रक्टर होगा जो कि दो चीजें ले रहा है, एक तो जीमेल का सर्वर एंड दूसरा पोर्ट नंबर. एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा दैट वी आर स्टोरिंग एज अ एफ और एज अ एस. सर्वर का ऑब्जेक्ट बना एस. ओके, भी बीच में जो लिखा था ना EHLO स्टार्ट TLS, वो कुछ भी लिखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. यू हैव टू सिंपली लॉग इन इनटू द सेंडर अकाउंट. एंड टू गेट लॉग इन इनटू द सेंडर अकाउंट, देखो ध्यान से, टू गेट लॉग इन इनटू योर सेंडर अकाउंट,
तो सेंडर अकाउंट का हमें ईमेल आईडी चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम माय एनवायरनमेंट वेरिएबल. सो आई एम सेइंग सेंडर ईमेल is equal to os dot environ dot get, and आपने जो भी नाम दिया है, so I have given a email underscore address. Okay, then password and is equal to os dot environ dot get, and then double quotes में email underscore password. Okay, so that's it. So you are getting your email ID of the sender and password, and by using that within a with I'm just getting login. तो with के अंदर हम लोग लिख रहे हैं s dot login and we are just sending sender email ID comma password. So we'll get an entry. ये हमें मैसेज फॉर्म करना है कि हमें क्या क्या सेंड करना है, हमें ये बताना है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, तो फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, कंटेंट, अटैचमेंट्स, तो ये सारे के लिए यहाँ पे ऊपर आके आउटसाइड दी विथ के बाहर बना रहे. ईमेल मैसेज ये क्लास है. ईमेल मैसेज क्या है? दिस इज योर क्लास. ये क्लास है. ये भी SMTP SSL ये क्या है? SMTP SSL ये भी क्या है? आपका क्लास है. क्लास फ्रॉम SMTP lib model. Okay, help to connect to mail server. Okay, and this is your class. and आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इट इज बिलोंगिंग टू द gmail dot message. Okay, now it forms the message. ये मैसेज बनाता है. इट फॉर्म्स दी मैसेज. तो कैसे मैसेज बनाएंगे? देखो, दिस इज योर क्लास. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ. तो कैसे बना रहे हैं? देखो, मैसेज इज अ ऑब्जेक्ट नेम is equal to class name and round a parenthesis. तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट. यहाँ तक किसी को डाउट है? राइट नाउ इज इट ओके कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया? ठीक है, कैन आई कंटिन्यू? क्रॉस क्वेश्चन है क्या यहाँ पे किसी का? कुछ भी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप लोग ईमेल सेंड करना कैसे वो सिखा रही हो आपको. सो यू आर गेटिंग योर email address and password from your environment variable. Now you are just forming your email message. Okay, तो आप ईमेल को मैसेज को फॉर्म कर रहे हो. सो गए क्या सब लोग? ओके, so here I'm saying message square parenthesis single quote. Here we are going to say that किसके थ्रू मैसेज आ रहा है. so from, okay, square parenthesis में from is equal to. so मैसेज में हम बोल रहे हैं कि from and is equal to and you are saying that sender email. so this is their form. okay, then message and square parenthesis में हम लोग बोल रहे हैं to किसको जा रहा है. so you can specify here to. तो I'm saying sonali dot mindhe @gmail.com. आपको भी सेंड कर सकते हैं बट यू हैव टू चेंज योर लेस सिक्योरिटी एप्लीकेशन टू ट्रू. तो आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे ऐड हो सकता है. डजंट मैटर. Okay, after that before to and from we have something called message, and then message में एक attribute है and that is your subject. subject क्या है? okay, तो is equal to subject है sending images. okay, just a subject. then message dot
तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया आपका टू, ये आ गया आपका फॉर्म, एंड आफ्टर दैट मैसेज इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, अ मैसेज क्लास एंड डॉट, ये बिल्ट इन क्लासेस है, ये ध्यान में रखो कि सेट कंटेंट, आपका कंटेंट मीन्स मैसेज सेट करना आपको, प्लीज फाइंड अटैचमेंट्स, प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट्स। अभी तक हमने अटैचमेंट्स नहीं डाली है, बट दिस इज माय मैसेज, प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट्स। ओके, देन वी आर जस्ट कमिंग, तो हमने क्या किया, देखो व्हाट आर दी स्टफ्स वी आर डूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग द एनवायरमेंट वेरिएबल वैल्यूज, then I'm just forming my message, I'm creating my built-in a class object email message। उसके अंदर हम लोग क्या क्या सेट करें, आपका ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट, देन आपका फॉर्म टू एंड कंटेंट, then we are just creating a object of your email server, we are getting login into the sender, and then I'm saying s dot, okay, s dot send a message, s dot send a message, and आपका मैसेज सेंड कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अभी तक हमने अटैचमेंट ऐड नहीं किए। नाउ इफ यू रन द प्रोग्राम, रन, it will not show anything here, it is just saying exit code 0, you have to go into your gmail, gmail पे चले जाओ आप, जस्ट से रिफ्रेश, देखो यू गॉट द मैसेज सेंडिंग इमेजेस, ये पहले वाला था लेट्स हैव अ पार्टी दिस वीकेंड, and here we have a sending message, if you open this is your please find the attachment, but right now your file is not having any attachment, तो हमें attachment भी send करनी है। so see check your code now, आपका कोड देखो एंड कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, so that I can go ahead, any problem, any query, any question here, समझ में आ गया यहाँ तक, yes no anything, वॉइस आ रहा है ना आपको, यू गाइज आर गेटिंग माई वॉइस, तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी है, कुछ डाउट है, कुछ रिप्लाई, आज के सो गए क्या सब लोग, नहीं सीखना है तो बता दो, नहीं सीखेंगे हम लोग, क्लोज कर देते हैं मीटिंग। यू गाइज आर गेटिंग और नॉट? ओके, विल मूव अहेड, तो ये हो गया आपका मैसेज। नाउ आई विथ अटैचमेंट्स आई वांटेड टू सेंड वन इमेज, ओके, तो हमें अटैचमेंट में एक इमेज भी सेंड करनी है, सो इमेज मस्ट बी इन माय पैकेज, पैकेज के अंदर होनी चाहिए, तो आई एम जस्ट कॉपिंग सम इमेज फ्रॉम माय सिस्टम, ओके, तो डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं HTML में, so I'm just copying this images from my system, कॉपी कर रही हूँ मैं, putting it into my package, yes, मैं पैकेज में आ गए, भी यही इमेजेस को हमें अटैचमेंट में ऐड करना है, बट राइट नाउ आई एम शोइंग ओनली विद अ वन इमेज एंड लेटर आई विल शो यू विद अ मल्टीपल इमेजेस, बट अभी एक ही इमेज के साथ देख रहे हैं। सो फॉर सेंडिंग द इमेजेस आपको एक अलग से मॉडल लगेगा, आपको एक अलग से मॉडल लगेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट इमेज सेंडिंग के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल इट, कॉपी, हाँ ये ईमेल सेंडिंग का ही है ना, सो डोंट वरी, यही पे चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको और एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो इंपोर्ट इमेज HDR, ओके, आपको क्या इमेज HDR करके मॉडल है, ओके, दिस इज योर मॉडल, एंड मॉडल में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, जैसे कि इस मॉडल में आपका ईमेल मैसेज करके क्लास है, देन SMTP लिब में SMTP करके क्लास था, अभी SMTP SSL क्लास है, सो दीज ऑल आर दी क्लासेस, एंड ये मॉडल से आते हैं, ओके, यू हैव टू इंपोर्ट दी मॉडल, सो इंपोर्ट एंड आई एम सेइंग इंपोर्ट माय मॉडल इमेज HDR, दिस इज फॉर योर इमेज। now here you have to open
ओपन इमेज, ओके देखो, ओपन इमेज इन ओपन इमेज, तो ओपन करने के लिए विथ यूज कर रहे हैं हम लोग ताकि क्लोज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। सो विथ ओपन, फाइल हैंडलिंग हमने सीखा है। फाइल का नेम, फाइल का नाम है हमारा इमेज का जो हमें सेंड करनी है, विडो वैन रॉसम GVR। ओके, ये इमेज फाइल है। सो आई एम ओपनिंग इट इनटू द रीड मोड, एंड रीड मोड के लिए BR, बाइनरी रीड। ओके, बाइनरी फाइल है। एज F, हमने फाइल को ओपन कर लिया ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द डेटा ऑफ द फाइल, फाइल का डेटा रीड करना पड़ता है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट टेकिंग वन वेरिएबल फाइल अंडरस्कोर डेटा, वी आर रीडिंग अ डेटा हियर। सो एफ डॉट रीड, पूरा डेटा रीड करना है तो आपको पता है कि वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड रीड। ओके, ये हमने फाइल हैंडलिंग में सीखा है। सो फाइल अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, सो आई एम रीडिंग अ फाइल। देन फाइल नेम, आपको फाइल का नेम भी रीड करना है सपोज, so is equal to f dot name, that will give you file name. Okay, then you require to have a file type also, so I'm just saying file type underscore type, ये variable बना रहे, and to get the type of the file, what you have to say, see img hdr dot what and f dot name, तो फाइल का नेम पास कर रहे हैं एंड व्हाट फंक्शन विल गेट द टाइप ऑफ द फाइल। ओके, कौन सा टाइप है, जैसे कि PNG है, JPG है या वर्ड है, आपका कौन सा टाइप का फाइल है। सो यू आर गेटिंग दैट। ओके, यहाँ तक ठीक है? आपको कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम हियर? इज इट ओके? ना आफ्टर दिस, ये होने के बाद आपने फाइल को ओपन किया, ये सारा लिया। अभी आपको ये जो आपका ऊपर मैसेज बना, आपने जो मैसेज बनाया जिसमें आपने सब्जेक्ट डाला है, फॉर्म डाला है, टू डाला है एंड कंटेंट भी डाला है, वहीं पे आपको ऐड अटैचमेंट करना है। सो मैसेज इज ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अटैचमेंट्स। ओके, ऐड अटैचमेंट में आपको सबसे पहले बताना है फाइल का डेटा। सो फाइल का डेटा क्या है, मीन्स कंटेंट दे रहे हैं हम लोग, कॉमा मेन टाइप is equal to, आप क्या सेंड कर रहे हो, इमेज। सो मेन टाइप विल बी इमेज, कॉमा सब टाइप इज इक्वल टू सब टाइप, तो सब टाइप विल बी फाइल टाइप। तो फाइल टाइप होगा आपका जो भी है, JPG है मेरे केस में, सो फाइल टाइप। आई एम जस्ट गेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ योर इमेज HDR। ये हमारा मॉडल है that is holding what, and what will just take the file name and it will return the type of it. Now after that you have to say file name. Okay, so file name is equal to file name, to file, that's it. ये आ गया आपका सब। तो हमने फाइल को ओपन किया, देन फाइल को रीड फंक्शन अप्लाई करके आपने डेटा रीड करके लिया, देन फाइल के ऊपर नेम ऑपरेट प्रॉपर्टी कॉल करके फाइल का नेम गेट किया। आई एम जस्ट गेटिंग द नेम, हमें सारा डायनामिक चाहिए, स्टैटिक नहीं चाहिए, इसलिए ये सारा करें। फाइल का टाइप हमें पता है कि JPG है, बट वी आर गेटिंग इट डायनामिकली बाय यूजिंग इमेज HDR डॉट वॉट एंड उसे फाइल का नेम पास कर दिया, इट विल रिटर्न द टाइप विल बी JPG, दैट विल गेट होल्ड हियर। देन ये जो ऊपर मैसेज बनाया हमने, उसी के अंदर हम लोग अटैचमेंट ऐड कर रहे हैं। सो फंक्शन है हमारा ऐड अटैचमेंट, जैसे सेट कंटेंट है वैसे ऐड अटैचमेंट है। फाइल का डेटा पास करना, आपको टाइप बताना है। सो मेल टाइप, मेन टाइप जो है दैट विल बी इमेज। सब टाइप आपका जो फाइल का टाइप है वो होगा। फाइल का नेम पास करना होगा आपको एंड दैट्स इट। सो आफ्टर डन विद दिस ऑल दिस स्टफ, ये होने के बाद
Right now, you can just run the program. So wait for a result. So exit code 0 means your code mail gets successfully sent. You have to go back into your Gmail. I'm just going back. See, sending image. Please find the attachment. Now this time it is holding my attachment. You can download. ओके ये देखो आपकी फाइल का नाम आ रहा है, आपका साइज भी आ रहा है. यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन गो इनटू एंड ऐड इट इनटू द ड्राइव. तो ये है वे. ठीक है. सो दिस इज योर इमेज विद द अटैचमेंट. तो ईमेल में हमने इमेज को अटैच किया. देखो कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो. एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. ठीक है. इज इट ओके? ओके. सो हम लोग एक और देखेंगे कि हाउ टू सेंड द मल्टीपल इमेज. कोड सेम ही रहेगा बट एक बार टाइप करते हैं आपके लिए वापिस से. ओके. सो फाइल एंड देन यहाँ पे पाइथन फाइल बना बोल रहे हैं हमारे पैकेज के अंदर. राइट क्लिक न्यू. आई एम सेइंग पाइथन फाइल. पाइथन फाइल में क्या कर रहे हैं देखो. मल्टीपल इमेजेस इन अटैचमेंट. तो मल्टीपल इमेजेस है अभी. तो देखो सबसे पहले आपके इंपोर्ट्स आएंगे. अभी आपको पता है कि क्या क्या इंपोर्ट करना है. फर्स्ट ओएस. ओएस किस लिए? टू गेट योर environment variables. Okay, then import your image HDR. Okay, for working with the image, and basically it is for getting the type of image. Then from your email dot message, you have to import one class called email message. This is the class. With the help of that you can entirely form your message. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें मल्टीपल जो इमेजेस सेंड करनी है उसके लिए इमेज img लिस्ट बना रहे. एक लिस्ट वेरिएबल बना रहे. स्क्वायर पैरेंथेसिस में ये लिस्ट होगा. दैट विल होल्ड द नेम्स ऑफ द इमेज. jg डॉट jpg. ये मेरी फर्स्ट इमेज है सपोज ये वाली. सेकेंड हमारी है van rossum डॉट jpg. ओके. एंड द नेक्स्ट वन जो हमें सेंड करनी है वो है सिमोन. आपके पैकेज में होनी चाहिए, ये मैटर करता है. सिमोन विल्सन डॉट जेपीजी. तो ये तीनों इमेजेस है. वी हैव इट. देखो ये एक है, ये एक है एंड ये एक है. ओके. सो वी हैव ऑल दिस 3 इमेजेस. भी सबसे पहले हमें क्या करना है देखो. आई एम सपोज टू फॉर्म द मैसेज. एंड टू फॉर्म द मैसेज सबसे पहले ये करना है यहाँ पे कि आपको सेंडर एंड रिसीवर, सॉरी सेंडर का ईमेल एंड पासवर्ड एनवायरमेंट वेरिएबल से गेट करना है. फर्स्ट गेट द एनवायरमेंट वेरिएबल. तो क्या करेंगे हम लोग. सेंडर एक वेरिएबल बनाए. सेंडर ईमेल इज इक्वल टू os डॉट environ डॉट गेट. okay, os dot environ dot get. and here you have to specify the name. name क्या है देखो. तो आपका नेम है email underscore address. तो this is the name. then मैं से password आप वेरिएबल बनाओ is equal to os dot environ dot get. and then here round a parenthesis and that will hold in a double quotes your email password. ओके. एंड ये लिस्ट है इमेजेस की जो हमें सेंड करनी है. दैट्स इट. सबसे पहले हम मैसेज फॉर्म करेंगे. विल क्रिएट अ मैसेज. सो ईमेल मैसेज ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे. msg करके ऑब्जेक्ट बना है. इज इक्वल टू ईमेल मैसेज राउंड पैरेंथेसिस.
ये आपको क्या क्या बताना है ये मैटर करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई द टू फॉर्म एंड सब्जेक्ट. सो फर्स्ट मैसेज एंड स्क्वायर पैरेंथेसिस में सिंगल कोट्स में हम बता रहे फ्रॉम. फ्रॉम क्या है? इज इक्वल टू तो सेंडर का ईमेल. Okay, that will act as a form. Then message and square parenthesis single quote, and then we are saying to is equal to, आपको क्या बता रही हूं मैं, टू. एंड टू इज सोनाली डॉट मिंढे @gmail.com. एंड ये आपका कोट्स में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ऊपर का कोट्स में रिक्वायर नहीं है बिकॉज दैट इज अ वेरिएबल नेम. ये स्टैटिक वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल नेम है. सो वेरिएबल नेम आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट जो स्टैटिक वैल्यू है आपको सिंगल कोट में देनी है. मैसेज एंड अभी हम लोग सब्जेक्ट बता रहे, यू हैव टू स्पेसिफाई द सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू, एंड आप सब कुछ भी सब्जेक्ट बताओ, इज इक्वल टू मल्टी इमेज attachments. मल्टी इमेज अटैचमेंट्स. ओके, ये मैसेज आ गया आपका. भी आपको कंटेंट भी बताना है कि आपका जो कंटेंट मैसेज होता है वो. ओके, तो मैसेज डॉट सेट कंटेंट, एंड आप यहाँ पे डबल कोट्स में आपका मैसेज बता दो, जैसे कि हेलो सोनाली कॉमा प्लीज फाइंड द अटैचमेंट. प्लीज फाइंड द अटैचमेंट. तो ये तो हो गया. Now in an attachment I wanted to add this all the files, so I have to open these files one by one and then add it into the attachments. So for opening one by one, ये list है, list में से एक एक फाइल लेंगे and उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. So for iterating the list we will have a for loop. Okay, for file in image list. Okay, or img from image list we are taking one image. So I'm taking one image here. भी इमेज आ गई तो इमेज का पहले डेटा रीड करना है. ओके, सो इमेज डेटा इज इक्वल टू, पहले तो इसे जो इमेज आई, जो भी आपकी फाइल है, आप इसे फाइल भी बोल सकते हो, इसे इमेज भी बोल सकते हो. यू आर गेटिंग दैट इमेज हियर, यू हैव टू ओपन दैट इमेज. तो फॉर्म के अंदर हम लोग विथ लिख रहे हैं, विथ ओपन फाइल का नेम. सो फाइल नेम इज हियर img. अभी स्टैटिक नहीं है, img कमिंग फ्रॉम योर लिस्ट. लिस्ट से एक लिया, यहाँ पे है img, एंड ओपन इट into the br mode, binary read, because file is binary as f. तो फाइल को ओपन कर दिया. नाउ वी आर सेइंग डेटा, हम लोग डेटा ले रहे. सो डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड. रीड फंक्शन विल रीड एवरीथिंग फ्रॉम द फाइल. इमेज से सारा डेटा रीड किया हमने. देन हमें टाइप चाहिए, सो टाइप इज इक्वल टू इमेज hdr डॉट what एंड f डॉट नेम. हम लोग नेम ले दें. दिस इज योर टाइप. सो ये डेटा हो गया, ये आपका टाइप हो गया. एंड आफ्टर टाइप व्हाट वी हैव सी, तो हमारा ये डेटा है, देन हमारे पास ये टाइप है, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड योर नेम एज वेल. तो हमें नेम भी चाहिए. सो एफ डॉट नेम. हमने ये सारा रीड करके लिया. तो डेटा रीड किया, फिर टाइप रीड किया. टाइप के लिए व्हाट फंक्शन है उसके थ्रू टाइप ले लिया हमने. एंड देन वी हैव अ नेम. ओके, आफ्टर गेटिंग ऑल दिस, विथ के अंदर ही देखो क्या कर रहे हैं. विथ के अंदर, विद इन अ विथ, मैसेज डॉट एड अटैचमेंट्स. मैसेज डॉट एड अटैचमेंट. फर्स्ट क्या बताना होता है, यू हैव टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ द फाइल. सो फाइल का कंटेंट है डेटा में. सो आई एम जस्ट सेइंग डेटा कॉमा मेन टाइप
is equal to image, okay, comma सब टाइप, सब टाइप क्या है डेटा का, सब टाइप मीन्स आपका इमेज का टाइप, सो आई एम जस्ट हैविंग इट इनटू द टाइप वेरिएबल, तो हमने इमेज का टाइप रीड करके टाइप वेरिएबल में स्टोर किया है, and then you have to specify the file name, sorry, and small file name is equal to, and then I'm just saying name, that's it. तो हमने ये सारा गेट करके अटैच कर दिया. सो दिस for loop get iterated multiple time. For every image it will open it, it will get the data, it will get the type, it will get the name, and it will add it into the attachment. तो ये तो हो गया. सो डन विद दिस. तो हमने पहले क्या किया, एनवायरमेंट वेरिएबल से डेटा लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन अ डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट वेरिएबल, देन लेट इट आई हैव फॉर्म वन लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाई, एंड देन मैसेज फॉर्म किया आपका फॉर्म टू, देन सब्जेक्ट एंड बहुत सारी चीजें की, आपका कंटेंट टाइप बताया. देन हमने जितने भी इमेज है वो लिस्ट में है उसे इटरेट करके आपके इमेजेस को रीड किया, डेटा रीड किया, फिर टाइप लिया, नेम लिया, एंड देन वी हैव एडेड इट इनटू द अटैचमेंट. अभी ये आपको सेंड करना है. फॉर सेंडिंग पर्पस यू हैव टू कनेक्ट टू योर मेल सर्वर. तो मेल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको वापस से विथ लिखना होगा. विथ इसलिए यूज करते हैं ताकि बाहर आने के बाद आपको क्लोजिंग की वरीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज एवरीथिंग. सो विथ देन smtp lib, हमने इंपोर्ट किया क्या उसे, नहीं किया. तो यू हैव टू इंपोर्ट मेल सेंडिंग मॉडल smtp lib. सो आपको smtp lib को भी इंपोर्ट करना है. तो यहाँ पे smtp lib डॉट smtp ssl, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग एक्चुअली, विथ की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. यहाँ पे आपको मेल सर्वर का नेम देना है smtp.gmail.com. तो ये आपका मेल सर्वर, उसका पोर्ट नंबर बताना है 465, दस डिफॉल्ट नंबर, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, ये आपका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है एज एफ, ओके, एज एफ. ठीक है. आफ्टर दिस, ये होने के बाद हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉग इन टू योर सेंडर अकाउंट. सो एफ बोलो या एज एस बोलते हैं, सर्वर है ये, तो एस डॉट लॉग इन सेंडर email and a password. Okay, it will get login, and then s dot send message, and you can send the message. At the time of sending the message, you have to pass the just a message variable which is holding to, form, subject and everything. आपके अटैचमेंट्स वगैरह सारा किसमें, मैसेज में. सो वी आर जस्ट सेइंग सेंड, रन इट. देखो एग्जिट कोड 0. आई एम जस्ट गोइंग बैक इनटू माय ईमेल, जीमेल में जा रहे हैं बैक. यू कैन सी आई एम हैविंग मल्टी इमेज अटैचमेंट, नया मेल आया है, जस्ट ओपन इट. यू कैन सी यू आर हैविंग अ मल्टीपल इमेजेस इन अ अटैचमेंट. कोई दिक्कत है यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग हियर, इज इट ओके? ठीक है, कोड देखो. यस, ठीक है, ठीक है. ओके,
सो हमें अगर बहुत एक साथ बहुत सारे सेंडर्स को सेंड करना डेटा, इफ आई वांटेड टू सेंड अ डेटा टू द मल्टीपल यूजर्स, भी तो हम एक ही यूजर को सेंड कर रहे हैं, दिस इज सोनाली। ओके, एक ही यूजर को सेंड कर रहे हैं हम लोग। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू वांटेड टू सेंड इट टू द मल्टीपल यूजर्स, एक से ज्यादा यूजर को सेंड करना है सपोज। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ पे सेंडर, ओके, लिस्ट, सेंडर की लिस्ट होगी, वी हैव सेंडर लिस्ट। यहाँ पे सोनाली तो है ही हमारे पास, सोनाली डॉट मिंधे @gmail.com, ये तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट विल टेक फ्यू मोर। तो ये प्रोफाउंड का ये है। ओके, आईडी है, दिस इज योर प्रोफाउंड आईडी। तो प्रोफाउंड के आईडी पे भी हम लोग सेंड करेंगे, उनका ईमेल एड्रेस जो है वो ले रहे हैं हम लोग। ओके, हम लोग कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, I'm saying copy, putting it into the your single quotes and the second one। हम दो लोकेशंस पे आपका डेटा सेंड कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट सेंडिंग टू दी सोनाली एज वेल एज दिस वन, तो दोनों को सेंड कर रहे हैं। ओके, तो दीज आर योर टू थिंग्स। तभी इन दोनों को सेंड करने के लिए डेटा ऐसे एक से ज्यादा भी हो सकते, बहुत सारे, सो सेंडर लिस्ट विल बी देयर, एंड टू में इंस्टेड ऑफ सेइंग सोनाली, सेंडर में आपका इंस्टेड ऑफ सेइंग इस टू में, जिसे जिसे सेंड करना है, टू में इंस्टेड ऑफ सेइंग ओनली सिंगल, आई विल से जस्ट अ सेंडर लिस्ट, दैट्स इट। सो इट विल टेक वन एंड इट विल सेंड बोथ ऑफ देम। तो हमें जो भी सेंडर है हमारे, सॉरी, जो भी हमारे रिसीवर्स है, रिसीवर लिस्ट, ओके, जो भी हमारे रिसीवर्स है उनकी एक लिस्ट बनाई एंड जस्ट पासिंग इट टू टू। नाउ यू कैन रन, सी एग्जिट कोड 0, दोनों लॉगिन है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाउंड में देखते हैं। सो सी यू गॉट वन मैसेज, इफ यू ओपन दिस इज देयर। सो ये प्रोफाउंड का है लॉगिन, देखो ये प्रोफाउंड का लॉगिन है, एंड अनदर वन इज आल्सो देयर, दैट इज माय पर्सनल लॉगिन। बैक चलते हैं, इसके अंदर भी आ गया। Okay, so you can send the same email to the multiple, just you have to add that receiver's email IDs into the list। तो रिसीवर के ईमेल आईडी को हमें किस में डालने की रिक्वायरमेंट है, जस्ट यू हैव टू ऐड इट इनटू द लिस्ट। ठीक है, एंड जस्ट पासिंग द रिसीवर लिस्ट नेम हियर। तो हमने ये भी देखा यहाँ पे कि हाउ टू सेंड द मल्टीपल योर images, multiple attachments, and even we have seen how to what we are saying, images कैसे सेंड करना है, and even हमने ये भी देखा कि how to send it to the multiple users, एक से ज्यादा यूजर को कैसे सेंड करना है। सो जस्ट फॉर्मिंग अ लिस्ट एंड लिस्ट get passed to the टू, it will automatically iterate and it will send it। ठीक है, ओके, बट ये सारा करने के लिए आपको एक चेंजेस करने पड़ते हैं, वो चेंजेस क्या है, ध्यान में रखो कि चेंजेस है आपको लीस्ट सिक्योर ऐप को ऑन करना है। तो हमने ये इमेजेस के बारे में बात की, वी आर जस्ट सेंडिंग द इमेजेस। नाउ सपोज करो कि आई वांटेड टू सेंड सम पीडीएफ फाइल, ओके, आई वांटेड टू सेंड सम पीडीएफ फाइल, आई वांटेड टू ईमेल द पीडीएफ फाइल। देखो, राइट क्लिक
न्यू, आई एम सेइंग पाइथन फाइल, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर रहे हैं राइट क्लिक न्यू, आई एम सेइंग पाइथन फाइल, सेंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपको पता है कि आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट ओएस, then you have to import your message. So email dot message is a model, and from that import, I'm saying from image dot message import email message class. Okay, ये message forming के लिए यूज होता है। Later we have to import your most important SMTP link, यहाँ तक ठीक है। Okay, now we have to get your OS environment variables from the OS package. So देखो कैसे कर रहे हैं, सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, वेरिएबल बनाए सेंडर ईमेल इज इक्वल टू os डॉट एनविरॉन डॉट गेट, डबल कोट्स में लिख रहे हैं हम लोग ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस डॉट py। ओके, देन पासवर्ड, पासवर्ड को गेट कर रहे हैं, पासवर्ड इज इक्वल टू os डॉट एनविरॉन डॉट गेट, एंड देन डबल कोट्स में हम लोग लिख रहे हैं ईमेल पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड, ये डॉट py गलती से आ गया का नाम। ओके, सो गेट पासवर्ड, तो पासवर्ड भी गेट कर दिया, तो एनवायरमेंट वेरिएबल रीड करके हो गए ना। सी, वी विल फॉर्म द मैसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज फॉर्म करेंगे। सो मैसेज क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एम इज इक्वल टू एम ईमेल मैसेज क्लास राउंड पैरेंथेसिस। अभी एम का आपको क्या क्या सेट करना है, टू, ओके, इज इक्वल टू, देन एम का आपको सेट करना है फ्रॉम इज इक्वल टू, सो फ्रॉम इज सेंडर नेम, सो सेंडर ईमेल, ये तो आ गया। देन आपका एम, एंड देन सब्जेक्ट सेट करना है, सब्जेक्ट is equal to, and subject will be your resume. Okay, and then m dot content, set content. Okay, please find the attachment, please find, आप जो चाहिए वो लिखो, मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, attachments, प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट्स, और अटैचमेंट एक ही रहेगा, तो सो वट एवर इट इज, एंड डॉट्स। ओके, तो ये मैसेज फॉर्म हो गया, बस सिर्फ अटैचमेंट ऐड करनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको टू ऐड करना है। ओके, सो टू में हम लोग लिख रहे हैं, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, आपने देखा है। राइट नाउ आई एम सेइंग ओनली सोनाली डॉट मेंढे एट द रेट gmail.com, सिंगल कोट में लिखना है आपको, यू हैव टू पुट इट इनटू द सिंगल कोट। Okay, so this is it. So to form subject and content हो गया। Now most important, you have to open your file into your read mode, जो भी आपकी pdf फाइल है, suppose I'm just searching pdf file on my system right now, होगी कुछ ना कुछ।
Just searching for a PDF file. So just copy that PDF file into your project package. So यहाँ पे कॉपी कर ली. ओके, तो ये आ गई आपकी फाइल, PDF फाइल. ओके, तो इसे ओपन करना है आपको. तो यहाँ पे विथ ओपन. ओके, फाइल का नेम. तो फाइल का नेम क्या है देखो. नेम ऑफ द फाइल इज योर रिज्यूम. तो फाइल का नेम दे रहे यहाँ पे रिज्यूम डॉट PDF and just specify the open mode, so read mode as F. तो हमने फाइल को ओपन कर दिया. आफ्टर ओपनिंग फाइल, फाइल का डेटा रीड करो. सो F डॉट रीड फंक्शन इज देयर. इट विल रीड एवरीथिंग. आई विल जस्ट स्टोर इट इनटू द डेटा. ओके, देन फाइल का नेम गेट करो. सो आई एम सेइंग नेम इज इक्वल टू F डॉट नेम. नेम इज अ प्रॉपर्टी एंड यू आर गेटिंग द नेम. देन फाइल का टाइप गेट करो. सो टाइप इज इक्वल टू. ओके, टू गेट द टाइप आपको एक इंपोर्ट करना होगा. इंपोर्ट. ओके, गेट दी टाइप. और यहाँ से गेट नहीं करते हो तो भी चलेगा. सो सी आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द टाइप. टाइप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है. सो आई एम नॉट गेटिंग इट. तो हमने फाइल का नेम लिया, डेटा लिया. अभी क्या कर रहे हैं देखो. एम इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द मैसेज डॉट एड अटैचमेंट. फर्स्ट डेटा बताना है आपको. सो डेटा इज एन डेटा वेरिएबल. देन मेन टाइप बताना है आपको. Main type in case of this will be a application. Main type क्या होगा आपका application. Then here the subtype for non images. Okay, subtype, you have to specify the subtype, and subtype will be your something like this. ये ध्यान में रखो. Okay, this will be the subtype, and then you have to say file name is equal to, and then name. File name is in a name. ये हो गया. सो दिस इज योर. तो हमने ये फाइल को रीड किया एंड वो से अटैचमेंट में भी डाल दिया. यू आर अटैचिंग. सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है कि मेन टाइप विल बी एप्लीकेशन, सब टाइप विल बी ऑक्टेट स्ट्रीम. ओके, सो दैट विल बी देयर. लेटर. देखो, ये सारा होने के बाद हमें ये पूरा मैसेज बन गया. टू हो गया, फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया. योर अटैचमेंट इज ऑल्सो देयर. नाउ यू वांटेड टू सेंड. सो फॉर सेंडिंग यू हैव टू कनेक्ट टू द सर्वर. सो विथ के बाद क्या आएगा देखो आपका smtp lib डॉट smtp ssl सर्वर नेम. सो smtp dot gmail dot com. Okay, this will be my server, comma, and then port number. The port number is 465. This will be your port number as S. First of all, login into the sender account. So sender email, comma, password. So after getting login into the sender account, you just send the mail. So s dot send a message. So s dot send message and message send कर दो आपका. Message is hold by the M. देखो, एनवायरमेंट वेरिएबल को गेट करो, मैसेज को फॉर्म करो, फाइल को ओपन करो रीड मोड में, रीड द डेटा, सेट इट एज अ अटैचमेंट, log in into the user account, sender account, and then send the message. Now you can run. Yes. Here we have a error. Line number data is equal to read.
यूनिकोड डिकोड डिकोड एरर। तो ये इमेज, ये जो पीडीएफ है इसमें ही प्रॉब्लम है। So we'll just delete this. We'll take something different. Another file लेते हैं हम लोग। ऐसे लिया मैंने, रिज्यूम नहीं है बट ये ऐसी फाइल है, इसको एक ले लिया हमने ऐसे। सब्जेक्ट चेंज करती हूँ मैं, जैसे ही पाइथन कंटेंट ऐसे। ओके, एक सब्जेक्ट चेंज कर दिया एंड देन फाइल का नाम हमारा क्या है, नाउ रन। It's giving an error at the time of reading the PDF file. Dot read. चलो एक आध वर्ड फाइल देखते हैं। विल चेक फॉर अ वर्ड फाइल। ओके, विल जस्ट गो इनटू एफ ड्राइव। वर्ड फाइल के साथ ट्राई करते हैं, डॉक फाइल के साथ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम दे रहे हैं। कहाँ गया? ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम। एक्चुअली ये जो फाइल्स है इनके एक्सटेंशन सपोर्टेड नहीं है यहाँ पे, आई गेस, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क्स भी दिखा रहा है ना। सो एक्सटेंशन सपोर्टेड नहीं होने के कारण पहले रन करते हैं इसे सेम। सो इट इज नॉट सपोर्टिंग योर एक्सटेंशन। ठीक है, character map to undefined line number 23 in decoder। एक ही मिनट है।
Okay, I will check for that and let you know about your PDF because ये बहुत ही ज़्यादा इशू दे रहा है ये। आई गेस आपके फाइल का एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं है इसीलिए दिक्कत आ रहा है। ओके, सो आई विल चेक फॉर दैट एंड आई विल लेट यू नो। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ तक जितना कवर हुआ उसमें कुछ प्रॉब्लम है? पीडीएफ का हम लोग कल बताते हैं, बट जितना रन हुआ, जितना एग्जीक्यूट हो गया है, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? ओके है? इज इट ओके? ओके, सो ऑन दिस नोट, देखो आई एम शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट्स टू यू पीपल, आपको चाहिए होगा ये, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू योर ड्राइव, टेक इट फ्रॉम देयर। ओके, ड्राइव से ले लो, आई एम शेयरिंग ऑन अ ड्राइव। सबका ये रन हो गया? MySQL का कोड रन हो गया सबका? ओके, तो आपको डेटा भी शेयर कर दिया। ऑन दिस नोट, वेल स्टॉप, ट्राई दिस। पीडीएफ का जो है मैं बताती हूँ आप कल, आपको कल। ओके, तो कल हमें कुछ बाइट एरे वगैरह भी लेना है, दैट इज सम लेफ्ट आउट टॉपिक, एंड एक्सएमएल पार्सिंग सिखाना है आपको। ओके, सो दैट विल बी देयर। सो एक्सएमएल के बारे में कल सीखेंगे, हाउ टू पास द एक्सएमएल एंड ऑल दैट। ओके, सो विल सी द एक्सएमएल पार्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी बाइट्स एंड फ्रोजन सेट, एंड देन विल टेक अ एक्सएमएल पार्सिंग। ठीक है, सो आज यहाँ पे रुकते हैं। होप यू गाइज हैव डन विथ योर एग्जीक्यूशन ऑफ द MySQL प्रोग्राम्स। मैं सारा शेयर कर रही हूँ, इट डजंट मीन कि आप सिर्फ से डाउनलोड करके रख दो आप साइड में, आपको वो रन भी करना है। यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, यू हैव टू रन इट। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। मोहित तो सेशन में है ही नहीं, इनका देखना था हमें, बट ही इज नॉट देयर, सो फाइन, विल एंड। ओके, any doubt, any query, can I end?